Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries, and you can call us on 2331 4444, 2371-7106 and 2371-7117. But don't forget to prefix 011 if you are calling from outside Delhi. Well, I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और कार्यक्रम में आपके सवाल भी लेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। प्रश्न पूछने के लिए इन नंबरों पर आप फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। हमारे दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आज ऑनलाइन आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं निशित। At the stock market, snapping 4 days of losses, Sensex climbs 534 points, the Nifty advances 159 points. Rupee weakens 20 paise against the dollar. Government extends credit guarantee scheme for subordinate debt up to 31st of March next year, and the Brent crude oil futures trade lower, near $79 per barrel ahead of the OPEC meet. 4 कारोबारी सत्रों की गिरावट के बाद सेंसेक्स 534 अंक चढ़ा। निफ्टी में 159 अंक की बढ़त, रुपया हुआ डॉलर के मुकाबले 20 पैसे कमजोर। सरकार ने अधीनस्थ ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना को अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ाया। और तेल उत्पादक ओपेक देशों की बैठक से पहले ब्रेंट कच्चे तेल के दाम गिरकर $79 प्रति बैरल के करीब। शुरुआत शेयर बाजार से करते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 534 अंक के उछाल से 0.9% की वृद्धि से 59,299 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.9% बढ़कर 159 अंक ऊपर 17,691 पर दर्ज हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.5% और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.7% लाभ में रहे। At the stock market, the Sensex at the Bombay Stock Exchange climbed 534 points or 0.9% to end at 59,299 today. The Nifty at the National Stock Exchange advanced 159 points or 0.9% to 17,691. And in the broader market, the BSE Mid-Cap Index advanced 1.5% and the Small Cap Index added 1.7%. On the BSE, all the sectoral indices ended higher except the Consumer Durables Index, and the Metal Index was the leading gainer, jumping 2.7%. The Realty and the Power Index climbed 2.3% each. The Basic Material Index advanced 2.1%. The Industrial Index added 1.8%. The Utilities Index and the Healthcare Index rose 1.5% each. And the Capital Goods Index rose 1.4%. The Finance Index gained 1.1%. The Tech, the IT and the Energy Index moved up 1% each. The BankX and the Telecom Index added 0.9% each. And the Consumer Discretionary Index ended 0.8% higher. The Consumer Durables Index was the only loser, shedding 0.1%. Well, we have our first caller from Kolkata, Atanu. Atanu, welcome to the show. Please ask your question. Atanu, can you hear us? All right, probably we have lost contact with Atanu. We'll now move on to our next caller, Satish from Delhi. Satish ji, welcome to the show. सवाल पूछें। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार।
मैडम आजकल जैसे पाकिस्तान में डॉलर ना बड़ी तेजी से उसमें इजाफा हो रहा है। अभी थोड़े टाइम पहले 155 था, अब 172 के करीब हो गया। और मैडम दूसरी तरफ भारत में जैसे 74-75 पे डॉलर रुका हुआ है, लेकिन उसके बाद भी महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो मैडम ये बढ़ती महंगाई के कारण क्या जो विदेशी कर्ज हो रहा है, जो फॉरेन डेट में इंक्रीज हो रहा है, वो कारण है या कोई और है, ये बताइएगा मैडम। धन्यवाद। जी देखिए, ओवरऑल जो क्रूड की प्राइसेस हैं वो बढ़ गई हैं, जिसका हमें असर हमारे मार्केट पे भी नजर आ रहा है। कोविड की वजह से जो सप्लाई बॉटलनेक्स रहे थे, उसका भी असर कमोडिटीज के ऊपर नजर आया है, जिसकी वजह से हमें महंगाई नजर आ रही है। माना जा रहा है कि ये एक टेम्पररी फेज है और जैसे जैसे इकोनॉमिक रिकवरीज बढ़ेंगी, लोग वापस अपने काम पे आएंगे, तो कमोडिटी की प्राइसेस कम होंगी और महंगाई भी कम होने की उम्मीद है। जैसे ओपेक अपना सप्लाई बढ़ाएगा, वैसे ही क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी थोड़े दायरे के अंदर आ जाएंगी। जी डॉक्टर यामिनी, अगर हम शेयर बाजार की बात करें तो आज 4 दिनों की जो गिरावट रही कारोबारी सत्रों में, उसके बाद आज शेयर बाजार में कुछ रौनक लौटी है और सेंसेक्स, जैसा कि हमने अभी खबरों में बताया है कि 534 अंक बढ़कर बंद हुआ है। क्या मुख्य वजह आज की बढ़त को आप मान रही हैं? जी देखिए, ओवरऑल मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी रही है पिछले वीक में और अभी भी आएगी काफी। कंसोलिडेशन का केस रहा था पिछले सप्ताह और इस सप्ताह भी कंसोलिडेशन का केस रहेगा। जो बढ़त देखी गई है वो मार्केट का बाउंस बैक होता है जब थोड़ी सेलिंग ज्यादा हो जाती है, तो कुछ लोग पॉजिटिव नोट पर उसे बाय करते हैं। ओवरऑल मार्केट में ऑप्टिमिज्म है, पॉजिटिविटी है, वैक्सीनेशन डोजेस को लेकर के, इकोनॉमिक रिकवरीज को लेकर के, जीडीपी ग्रोथ को लेकर के, रिफॉर्म्स के प्रोसेस को लेकर के। पर जो चैलेंजेस अभी भी रह रहे हैं वो है कोविड की जो थर्ड वेव है उसका इम्पैक्ट, और जिसके आउटब्रेक की वजह से हमने देखा है वर्ल्ड मार्केट्स में भी काफी असर रहा है। जो आगे आने वाले सत्र हैं उसमें देखा जाएगा, एक तो आरबीआई की क्या पॉलिसी रहती है, जिसमें माना जा रहा है वो अकोमोडेटिव स्टैंस रखेंगे, और फेड की क्या टेपरिंग की पॉलिसी रहती है, और यूएस बॉन्ड यील्ड्स के क्या रेट्स रहते हैं। We are back with Atanu from Kolkata. Atanu, please. We are afraid we have lost Atanu once again. Well, anyways, Yamini, we were talking of the corrections we saw over some sessions over the past week or so. So, do you see this correction actually coming that much more with a vengeance in the coming times? And how do you actually see this running in the long term as well? Well, the markets had moved to a very high unrealistic level. Primarily, we don't see that being supported by the fundamentals. Mm-hmm. The fact that there has been a lot of liquidity in the market has been pushing the markets up. Also, we do see stocks being one of the most return-oriented avenues for investment lately. Mm-hmm. So there has been a lot of buoyancy because of the FIIs, because of the overall, heightened optimism that has been there, and also because of the fact that the economic recoveries have taken a faster pace than what was assumed. So all these factors have played a role, but what will play a role is the PMI, which will be released lately, also the RBI's monetary policy and its stance over the overall economic recovery. As I said, Fed's policy on tapering of bond buying, US bond yields, and the crude prices. Another challenge that remains important is the higher crude oil prices, which is likely to bring inflation as well as affect the rupee depreciation. All right. It's time now to slip into a quick commercial break, but do stay tuned in because we have lots more coming up on the other side of the break. तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया, अरे छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
जी, और ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। अब नजर डाल लेते हैं रुपए के आज के प्रदर्शन पर। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 20 पैसे कमजोर होकर $1 के मुकाबले 74 रुपए 31 पैसे पर बंद हुआ। गुरुनाथ हमारे साथ थाने से जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी गुरुनाथ जी, कार्यक्रम में स्वागत। सवाल पूछिए अपना। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछें। नमस्कार, आवाज आ रही है आपकी, सवाल पूछें। सर, यामिनी मैम को भी नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम, मेरा सवाल है सर, ये जो अपने यहाँ जो दो स्टॉक मार्केट है, BSE और NSE, और NSE जो एक जगह में मैं पढ़ा हूँ सर, क्या इस पे गवर्नमेंट का पूरा नियंत्रण है या गवर्नमेंट ऑपरेट करती है? अगर करती है तो गवर्नमेंट को इससे क्या मार्जिन होती है? और ये जो कंपनियां उसमें लिस्टेड है, ये सब गवर्नमेंट ही होती है कि प्राइवेट भी होती है? जी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे ट्रेडिंग होती है। जो भी कंपनी अपने आप को लिस्ट करती है, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही ट्रेड कर सकते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वो भी एक स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे ट्रेडिंग होती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक एसोसिएशन के अंदर आता है। आपका NSE प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट, इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी लाया था मार्केट के अंदर। Hello? Yeah, we can hear you, Yamini. Please Okay. carry on. Yeah, that's it. जी, All right. We have our next caller from Mumbai, Ratnakar. Ratnakar, welcome to the show. सवाल पूछें। Hello, Ratnakar ji, can you hear us? Anyways, probably we have lost Ratnakar. जी, और अब एशियाई बाजारों की ओर रुख कर लेते हैं। जी रत्नाकर जी, आप हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, हमें सुन पा रहे हैं? जी रत्नाकर जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, मेरा सवाल है कि अभी RBI पॉलिसी वैसे से रहने की कोशिश करेंगे कि रेपो रेट रिजर्व रेट में कम ज्यादा हो सकता है? और दूसरा, अभी ये ऑलरेडी हाई जो सिचुएशन है मार्केट में, तो उससे रिटेल इन्वेस्टर ने प्रॉफिट बुक करके। जी, इनका संपर्क हमसे टूट गया। फिलहाल इनका सवाल हमें मिल ही गया कि RBI और रेपो रेट के RBI की जो होने वाली मीटिंग है उसमें इस सप्ताह वो उसमें क्या क्या डिसीजंस अगर आने की उम्मीद है। डॉक्टर यामिनी कृपया बताएं प्लीज। हेलो डॉक्टर यामिनी, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है डॉक्टर यामिनी से हमारा संपर्क कट गया है। बहरहाल अब हम बात कर लेते हैं एशियाई शेयर बाजारों की। चीन में रियल एस्टेट सेक्टर और मुद्रास्फीति को लेकर जारी चिंताओं तथा अमेरिका से उत्साहजनक आर्थिक आंकड़ों और कोविड-19 की नई दवा आने की खबरों के बीच एशियाई शेयर बाजारों में आज मिला जुला कारोबार देखने को मिला। जापान का निकेई सूचकांक 1.1% लुढ़क गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.6% की गिरावट में रहा और हांगकांग का हैंगसेंग 2.2% फिसल गया। लेकिन चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.9% की बढ़त के साथ बंद हुआ और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1.3% लाभ के साथ बंद हुआ। And in the European market, the London's FTSE 100 had gained 0.1%, but France's CAC 40 and Germany's DAX had traded flat in the intraday trade. We once again have Atanu from Kolkata. Atanu, welcome to the show. सवाल पूछें अपना। हेलो। हाँ जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, मैं कल अतनु साहब फ्रॉम कोलकाता में क्वेश्चन। हेलो प्लीज। हाँ जी अतानु जी, we are afraid we have lost once again Atanu. We'll try to get back to him pretty soon. जी, और अब रुक करते हैं अगली खबर का। सरकार ने अधीनस्थ ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना को अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने पिछले वर्ष 13 मई को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत संकटग्रस्त MSME के लिए अधीनस्थ ऋण तनावग्रस्त संपत्ति कोष बनाने की घोषणा की थी। ये योजना संकटग्रस्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रवर्तकों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। संकटग्रस्त MSME इकाइयों की मदद के लिए सरकार ने पहले इस योजना को इस वर्ष 31 मार्च से 30 सितंबर तक 6 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया था।
मंत्रालय ने कहा है कि योजना के हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों को देखते हुए सरकार ने इसे और 6 महीने की अवधि के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया है। ये योजना अब अगले वर्ष 31 मार्च तक जारी रहेगी। Well, we have our next caller, Sushobhan from Kolkata. Sushobhan, welcome to the show. Good evening, Jamak Mirza team and Dr. Agarwal. My regards to you. My question is that, ma'am, if I want to invest in sovereign gold bonds, do I have to necessarily have a demat account? This is the first question. And secondly, I have a property, a second-hand flat, and if I want to dispose it of right now, I'm not getting the right amount of profit. Whatever selling price I'm getting, that is not adequate. So do you think that it is better to dispose of the property right now and to reinvest in the equity market, or to hold back the property for the long-term return? So if I make a comparative study, this will be a better decision for me. If you kindly just guide me. Well, as far as my information goes, for a sovereign bond, you do not need a demat account, but you do need to transfer the money. The other question is with respect to whether you should dispose of your assets right now. What is important to see is that whether you have made sufficient amount of profits or not. The stock markets are likely to be volatile in the next week, but it's not likely to slip very far. So you can maintain your positions at the moment. But if you do feel that you have made profits, it may be a good time to exit. The next caller is Uttam from Noida. Uttam, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछें अपना। सर गुड इवनिंग। मेरे को टैक्स के रिलेटेड दो मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक तो है कि मेरा लॉन्ग टर्म में मेरा लॉस था, बट शॉर्ट टर्म में मेरा गेन था। बट अगर मैं दोनों को सम करता हूं तो अल्टीमेटली इट्स लॉस। तो टैक्स का इसका कैसे कैलकुलेशन रहेगा वो मेरे को बताइएगा। दूसरा ये है कि मेरा फॉर्म 16 में जो डिटेल्स आ रही हैं दैट इज नॉट मैच्ड विद द जो मैं ITR फिल कर रहा हूँ वो उसमें मैच नहीं कर रही हैं। कुछ अदर डिटेल्स हैं वो उसमें दिख नहीं रही हैं। सो हाउ टू अप्रोच इन दैट केस? शैल आई अप्रोच टू कंपनी सेक्रेटरी जो मेरा टैक्स डिपार्टमेंट है, और शैल आई हैव टू अप्रोच टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? कि आपका पहला सवाल था लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, ये दोनों को जो है मिक्स नहीं किया जाता। लॉन्ग टर्म अलग रखे जाते हैं और शॉर्ट टर्म गेन्स या लॉस अलग रखे जाते हैं। जो शॉर्ट टर्म गेन्स होते हैं उन्हें इनकम में ऐड किया जाता है, और जो आप स्लैब की बेसिस पे बैठता है उसके बेसिस पे वो टैक्स पे किया जाता है। लॉन्ग टर्म पे एक फिक्स रेट पे किया जाता है, लॉस या गेन उसके बेसिस पे, और फिर एडजस्टमेंट होती है। जहां तक आपका सवाल है कि आपके फॉर्म 16 में TDS दिखा रहा होगा, वो आपको 26 AS में देखना होगा कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो नहीं आ रहा तो आपको अपने एम्प्लॉयर से बात करके चेक करना होगा कि उन्होंने आप ही के पैन नंबर में आपका TDS जमा कराया है या नहीं कराया। अगर नहीं कराया तो फिर वहां से करेक्शन करानी पड़ेगी। जी, दिल्ली से हमारे अगले कॉलर हैं अनिल। हेलो जी अनिल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। विशाल जी, आपसे पहले भी बात होती है मेरी कई बार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विशाल जी और निशित जी को नमस्कार मेरा। जी नमस्कार। यामिनी जी को भी नमस्कार। एक तो मेरा सुझाव है जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो थ्योरीज हैं, जैसे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इन सब पर भी कभी एडम स्मिथ वगैरह पर, या स्टिगलर की जो थ्योरी ऑफ प्राइस बुक है, KPM सुंदरम की बुक है, इन पर भी ध्यान जरा कभी इन पर कैप्शन कीजिए कि अवेयरनेस बढ़े सबकी। जी। और सेकेंडली कंसेप्ट है, जैसे कंज्यूमर सरप्लस एक कंसेप्ट है यामिनी जी, वो उसका आम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उपयोगिता है, और मल्टीप्लायर इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसके बारे में जरा समझाइए। धन्यवाद। कंज्यूमर सरप्लस होता है जो कंज्यूमर प्राइस पे करता है, और जो वो विलिंग है पे करने के लिए, और जो वो प्राइस एक्चुअली पे करता है। अगर कोई 100 रुपए विलिंग है पे करने के लिए लेकिन वो 50 रुपीज पे करता है तो 50 रुपीज कंज्यूमर सरप्लस माना जाता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट एक इफेक्ट होता है जिसमें जब हम देश के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो कहीं गुना ज्यादा हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है। उस कहीं गुना ज्यादा बढ़ने को एक मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। मल्टीप्लायर इफेक्ट काफी चीजों में देखा जाता है। इन्वेस्टमेंट जब की जाती है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जब की जाती है, या फिर जब हम आपके बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं तो वहां पे भी हम क्रेडिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर देखते हैं, जिससे कहीं गुना ज्यादा मनी की सर्कुलेशन होती है। जी, यानी कि एक छोटा सा ब्रेक।
बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। बड़े छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Welcome back. Our next caller is SPS Jan from Noida. Jan sir, welcome to the show. नमस्कार जी, मार्केट मंत्रा टीम और डॉक्टर यामिनी जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछें। अभी हम मोस्टली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE की बात सुनते हैं। लगभग 2 डिकेड पहले दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज और भी एक्सचेंज होते थे, तो क्या ये सब बंद हो गए हैं? अगर नहीं है तो इन छोटे एक्सचेंज में कितना परसेंटेज ट्रेडिंग होता है? जी देखिए, ये स्टॉक एक्सचेंजेस कुछ तो बंद हो गए हैं, कुछ अभी भी चल रहे हैं या इनएक्टिव हैं। परसेंटेज ऑफ ट्रेडिंग काफी कम है, मिनिस्कल लेवल पर है, इसलिए उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE में ज्यादातर ट्रेडिंग होती है, तभी इनके जो इंडेक्सेस हैं सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में बात की जाती है। जी, मुंबई से रत्नाकर जी हमारे साथ फोन लाइन पर एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रत्नाकर जी, कार्यक्रम में स्वागत। आप सवाल पूछिए अपना। हाँ, हेलो। वो पिछला सवाल ये है, वो RBI का पॉलिसी के बारे में जी, अभी आपका क्या गेजिंग हो सकता है, ये है सवाल। और दूसरा है कि अभी रिटेल इन्वेस्टर ने इतना हाई पर प्रॉफिट बुक करके जाना चाहिए क्या, बाहर निकलना चाहिए क्या? और लास्ट महीने का GST का कलेक्शन का क्या फिगर है? जी, आपका सवाल जो था कि अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आप बुक कर सकते हैं। ये एक अच्छा समय है, काफी हाई लेवल पर है मार्केट और वॉलेटाइल रहेगी मार्केट। अगर थर्ड वेव आती है तो जो है मार्केट्स डाउन जा सकती हैं, पर ओवरऑल पॉजिटिव टेरिटरी में ही रहेंगी मार्केट, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक रिकवरीज पॉजिटिव हैं। इनका पहला और दूसरा सवाल मैं नहीं सुन पाई थी। हेलो, रिटेल इन्वेस्टर्स से रिलेटेड इन्होंने कोई सवाल पूछा था। जी, वो बेच सकते हैं अपना जो stocks हैं, ताकि वो profit earn कर सकें। He asked about the figures for the GST collection for the last month actually. It has been over a lakh as far as I remember. Okay, our next caller is Vinay from Delhi. Vinay, welcome to the show. सवाल पूछें अपना। Hello, Vinay. Hello. हाँ जी, Vinay जी। Yeah, Vinay, this is Vinay. Yeah, Vinay. We can hear you. Good evening. Actually, I want to know about the P by E. What is the P by E ratio? Mm-hmm. It is price to earning ratio. Whatever is of the company, will be multiple times what is its price. So supposing the earnings is 2 rupees, but the price is 20, then the P ratio would be 10. Right. So our next caller is Ranjit from Ranjit, welcome to the show. Hello. हाँ जी, रंजीत जी, सवाल पूछें। Hello. Okay. We have lost Ranjit, but we'll get back to him. But yeah, when you're talking of the PE ratio, how much does it affect, the investors, this PE ratio into kind of investing or, making, some investments in the market? How does it affect them? It is one of the key ratios to understand whether I should buy a stock, whether it is overvalued, it is undervalued, or is there a sufficient amount of possibility to make returns in the market. So it is one of the key ratios while looking for investing stocks, especially when these stocks have the potential to grow higher and the P ratios are lower. जी, मुंबई से अभिजीत फोन लाइन पर हैं। हेलो। हाँ सर। जी अभिजीत जी, कार्यक्रम में स्वागत। सवाल पूछिए अपना। मैडम, मैं अभिजीत बात कर रहा हूँ। जी पूछिए अभिजीत जी, सवाल पूछिए। एक्चुअली मैडम, मैं पर मंथ एक सर्टन अमाउंट डायरेक्ट स्टॉक SIP करता हूँ इक्विटी में फॉर द अराउंड 20 to 25 years for holding period. It is right? I am going right or wrong? Just I want to consult with you.
एक SIP एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए अच्छा माध्यम है अपने पैसे को थोड़ी थोड़ी इकाइयों में स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए। उससे काफी हद तक आप मार्केट की वॉलेटिलिटी को एवरेज आउट कर देते हैं, क्योंकि आप समय समय पर निवेश कर रहे होते हैं और धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो बनता जाता है। और जब मार्केट धीरे धीरे बढ़ती है तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो भी बढ़ता जाता है। अगर आपके पास कम इकाई है और आप कम निवेश करना चाहते हैं धीरे धीरे करके, तो ये एक बहुत अच्छा मेथड रहता है। Next caller is Thomas from Delhi. Thomas, welcome to the show. Good evening, Bharata Mendra team. मेरा क्वेश्चन ये है कि how to identify this debt equity ratio from the balance sheet and how we can consider that this company is doing good or bad. Okay, on the balance you have something called the assets and the liabilities. So on the liabilities side you have the share capital, secured loans and unsecured loans. So the secured loans and the unsecured loans is the debt which the company has. The share capital, which is the subscribed share capital, is the equity which the company has. So when you divide the secured plus unsecured loans to the share capital which is subscribed, you get the debt equity ratio. Yeah, moving on to oil. The global crude oil prices held steady today ahead of a meeting by the OPEC and its allies, which may determine whether a recent rally in prices amid supply shocks and a recovery from COVID-19 pandemic will be sustained. News agency Reuters says that the group of oil producers was likely to stick to their existing agreement to produce an additional 400,000 barrels per day in November. So Brent crude gained 20 cents to trade at $79.48 per barrel, and the U.S. crude oil futures rose 1 cent to $75.98 per barrel. दिल्ली सराफा बाजार में 37 रुपए की गिरावट से आज सोने का भाव 45,539 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी भी 137 रुपए टूटकर 59,203 रुपए प्रति किलो के स्तर पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ $1,753 प्रति औंस, जबकि चांदी $22.42 प्रति औंस पर कारोबार कर रहे थे। Well, Yamini, very briefly, the crude has been rising steadily for some time now, almost nearing the all-time highs, driven by the spurt in demand and opening of travel and other activities. But the flip side, of course, is the inflationary pressure it can trigger. So how do you see this, and what could be your solution to tackle this catch-22 situation? Very briefly, Yamini. Well, the OPEC is likely to see an increase in the output because they are an export-based economies, and they will benefit if they increase the supplies. So I do see that they will come up with the increase in the supplies. जी, डॉक्टर यामिनी, कार्यक्रम में शामिल होने और श्रोताओं को उनके सवालों के जवाब देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. At the stock markets, snapping 4 days of losses, the Sensex climbs 534 points, Nifty advances 159 points, Rupee weakens 20 paise against the dollar. Government extends credit guarantee scheme for subordinate debt up to 31st of March next year, and the Brent crude oil futures trade lower, near $79 per barrel ahead of the OPEC meet. And that's it in this edition of Market Mantra. This is Nishit Kumar along with Vishal Sharma saying goodbye till we meet again the next time. Market Mantra.